السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری قوم میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جو ہم نے بچپن سے سن رکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ حدیث میں آیا ہے، کوئی کہتا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے، اور ہم بھی تحقیق کیے بغیر وہی بات آگے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا معمولی معاملہ نہیں۔ نبی کریم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو شخص جان بوجھ کر آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے آج ہم چند ایسی مشہور غلط فہمیوں کو سمجھیں گے، لیکن صرف یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بات غلط مشہور ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اصل حدیث کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کر دیا ہے۔ پہلی غلط فہمی، بڑا بن شیطان کا گھر ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ عورت اگر سر کے اوپر بڑا سا بن بنائے تو وہ شیطان کا گھر ہے، اور بعض لوگ یہ الفاظ براہ راست نبی کریم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا رک جائیے، شیطان کا گھر صحیح مسلم کی اس حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اصل حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم نے دو قسم کے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی۔ ان میں ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا جو کاسیات عاریات، مائلات ممیلات ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے لیے بہت سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھیں۔ کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود عریاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ مثلا عورت نے بظاہر کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن کپڑا اتنا باریک ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، یا اتنا تنگ ہے کہ جسم کی ساخت نمایاں ہو رہی ہے، یا لباس جسم کے ان حصوں کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپ رہا جن کا پردہ ضروری ہے، یعنی صرف جسم پر کپڑا موجود ہونا کافی نہیں، ستر اور حیا بھی مقصود ہیں۔ پھر فرمایا مائلات ممیلات، علماء نے اس کی بھی مختلف تشریحات کی ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ خود اللہ کی اطاعت سے ہٹنے والی اور دوسروں کو بھی اس طرف مائل کرنے والی۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اپنی چال، انداز یا زینت کے ذریعے دوسروں کو متوجہ کرنے والی، یعنی حدیث صرف بالوں کی بات نہیں کر رہی، یہ ایک مجموعی طرز عمل کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ اور پھر آتا ہے رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، یعنی ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ علماء نے اس کی مشہور تشریح یہ بیان کی کہ عورتیں اپنے بالوں یا دوسری چیزوں کے ذریعے سر کو غیر معمولی طور پر بڑا، بلند اور ابھرا ہوا بناتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی محسوس ہوتی ہے۔ بعض علماء نے بالوں کو اوپر جمع کر کے اس طرح بڑا اور ابھرا ہوا بنانے کو بھی اس تشریح میں شامل کیا ہے۔ لہذا یہاں ایک اہم فرق سمجھ لیجئے۔ حدیث میں ہر معمولی یا ہر قسم کے بن کا نام لے کر حکم نہیں دیا گیا۔ حدیث میں ایک مخصوص ابھری ہوئی، اونچی اور کوہان سے مشابہیت بیان ہوئی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس صحیح حدیث میں شیطان کا گھر کے الفاظ موجود نہیں۔ لہذا حدیث کی اصل تنبیہ ضرور بیان کیجیے، لیکن رسول اللہ کی طرف وہ الفاظ منسوب نہ کیجیے جو آپ نے نہیں فرمائے۔ دوسری غلط فہمی، حضرت بلال اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا تھا۔ ایک بہت مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ
अना ने फज्र की अजान नहीं दी, किसी दूसरे ने अजान दी लेकिन सूरज तुलुआ नहीं हुआ। फिर हजरत बिलाल ने अजान दी तो सूरज निकल आया। मेरे भाइयों और बहनों, ये वाकया सुनने में बहुत खूबसूरत और जज्बाती लगता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से हमारी मोहब्बत भी अपनी जगह है, लेकिन उस किस्से को मोतबर हदीस समझकर बयान करने की काबिले एतमाद बुनियाद नहीं मिलती तो असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा यकीनन रसूलुल्लाह के मुअज़्ज़िन थे। उनकी अज़मत, उनका ईमान, उनकी कुर्बानियाँ और उनकी फजीलत सहीह अहादीस से साबित है। हमें हज़रत बिलाल की शान बढ़ाने के लिए किसी गैर साबित शुदा कहानी की ज़रूरत नहीं। सहाबा की असल अज़मत इतनी बड़ी है कि उसे अफसानों के सहारे की ज़रूरत ही नहीं। मोहब्बत ज़रूर कीजिए, लेकिन मोहब्बत में भी सच न छोड़िए। तीसरी गलत फहमी, अख्तिलाफ़ी उम्मत रहमत है। एक और जुमला बहुत मशहूर है, इख्तिलाफ़ उम्मती रहमा, यानी मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। अक्सर लोग कहते हैं ये नबी करीम की हदीस है, लेकिन मुहद्दिसीन की एक मारूफ तहकीक के मुताबिक ये अल्फाज नबी करीम से सही सनद के साथ साबित नहीं, बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने साफ लिखा है कि उसकी असल नहीं मिलती। फिर लोग उसका क्या मतलब लेते हैं? यहाँ एक बारीक फ़र्क समझना ज़रूरी है। उलमाओं के दरमियान बाज़ इज्तिहादी और फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ वाक़ई मौजूद रहा है। एक इमाम ने दलाइल की बुनियाद पर एक राय अख्तियार की, दूसरे ने दूसरी। ऐसे इल्मी इख्तिलाफ का अपना पूरा उसूल और अदब है, लेकिन उस हकीकत से ये लाजिम नहीं आता कि इख्तिलाफ़ उम्मती रहमत है को नबी करीम का फरमान करार दे दिया जाए। कोई मफहूम हमें अच्छा लग सकता है, कोई बात किसी आलम की हो सकती है, लेकिन हदीस कहने के लिए नबी करीम तक मोतबर निस्बत चाहिए। चौथी अहम बात, दयूस कौन है? अब एक ऐसा लफ्ज़ जिसे आज कल सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। दयूस, किसी औरत ने मेक अप कर लिया, किसी ने फैशन कर लिया, किसी की तस्वीर सामने आ गई और फौरन उसके शौहर को लोग कहने लगते हैं ये दयूस है। ज़रा ठहरिए, ये कोई गाली नहीं जिसे गुस्से में किसी मुसलमान पर लगा दिया जाए। और हदीस में दयूस के बारे में वाकई इंतहाई सख्त वईद आई है। बाद रिवायात में उसे ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया गया है जो अपने अहल के मामले में खुब्स और बेहयाई पर राज़ी हो और उसे बरकरार रहने दे। उसका मफहूम क्या है? उलमाओं की तशरीहात के मुताबिक बुनियादी तसव्वुर ये है कि एक मर्द अपने घर वालों में खुली फहाशी, बेहयाई या हराम जिनसी तर्ज अमल को जानते हुए कबूल करे और इसके अंदर शरई गैरत बाकी न रहे। ये इंतहाई संगीन मामला है, लेकिन यहाँ भी वही गलती न कीजिए जिसके खिलाफ आज की पूरी वीडियो है। हदीस में ये जुमला नहीं आया कि जिसकी बीवी फैशन करे और गैर मुहर्रम उसे देख ले, इसका शौहर लाजमन दयूस है। हमें हदीस और अपनी तशरीह को अलग रखना होगा। इस्लाम शौहर को अपने घर वालों की दीनी और अखलाकी भलाई की फिक्र करने का हुक्म देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हर शख्स के हालात जाने बगैर उस पर इतना सख्त शरई लफ्ज़ लगा दें। और याद रखिए, हया का हुक्म सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द को भी अपनी निगाह, अपने लिबास, अपने किरदार और अपने ताल्लुकात की हिफाजत करनी है। दीन का तराजू दोनों के लिए है। पांचवें गलती, किसी बुजुर्ग का कौल नबी के नाम से फैला देना। सोशल मीडिया खोलिए,
एक खूबसूरत जमला सामने आएगा। नीचे लिखा होगा, हजरत मोहम्मद ने फरमाया, और 7 फूल। मस्जिद या खाना काबा की तस्वीर होगी। हम जज्बाती हो जाते हैं और फौरन आगे भेज देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हर खूबसूरत इस्लामी जुमला हदीस नहीं होता। मुमकिन है किसी सहाबी का कौल हो, मुमकिन है किसी बुजुर्ग की नसीहत हो, मुमकिन है किसी आलम ने कहा हो, मुमकिन है किसी शायर ने लिखा हो, और मुमकिन है किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने कल ही बना लिया हो। सिर्फ किसी जुमले के नीचे नबी करीम ने फरमाया, लिख देने से वो हदीस नहीं बन जाता। छुट्टी, गलती, असल हदीस सही, लेकिन अल्फाज हमने बढ़ा दिए। ये शायद सबसे खतरनाक गलत फहमियों में से एक है। कभी असल हदीस वाकई सही होती है, लेकिन लोग उसकी तशरीह करते करते अपनी बातें भी उसके साथ शामिल कर देते हैं। फिर अगली नस्ल समझती है कि वो तशरीह भी हदीस का हिस्सा थी। मसलन, असल हदीस में एक जुमला था, एक आलम ने उसका मतलब समझाया। किसी शख्स ने आलम की तशरीह और हदीस दोनों को मिलाकर आगे बयान कर दिया। तीसरे शख्स ने पूरी चीज को नबी करीम ने फरमाया कहकर बयान कर दिया, और यूं आहिस्ता आहिस्ता असल हदीस और इंसानी तशरीह आपस में मिल जाती हैं। यही वजह है कि हमें अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त कहना चाहिए, हदीस में ये अल्फाज आए हैं, और फिर अलग कहीं उलमा ने उसकी ये तशरीह बयान की है। दोनों को एक ना बनाएं, ज़ईफ, मौजूर और बेअसल तीनों को एक ना समझें। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। कभी हम कहते हैं ये हदीस सही नहीं, यानी झूठी है। यह भी इल्मी तौर पर दुरुस्त तरीका नहीं। ज़ईफ हदीस अलग चीज़ है, मौदू यानी मन घड़त रवायत अलग चीज़ है, और कोई ऐसा मशहूर कौल जिसकी नबी करीम तक मोतबर संद ही न मिले, उसका मामला अलग है। लिहाजा अगर कोई आलम किसी रवायत को ज़ईफ कहता है, तो हम अपनी तरफ से उसे फौरन मौजू और झूठी हदीस करार नहीं देंगे। हदीस का इल्म एक बाकायदा इल्म है, उसके उसूल हैं, उसके माहिरीन हैं। अब सबसे अहम बात, मेरे भाइयों और बहनों, नबी करीम ने जानबूझकर आपकी तरफ झूठ मंसूब करने पर इंतहाई सख्त वईद फरमाई है। उसलिए अगली मर्तबा व्हाट्सएप पर कोई पैगाम आए, नबी करीम ने फरमाया, तो फौरन फॉरवर्ड न करें। टिकटॉक पर कोई शख्स कहे हदीस में आया है, तो सिर्फ उसके इत्तिमाद से बोलने की वजह से यकीन न कर लें। यूट्यूब पर हम खुद भी कोई वीडियो बनाएं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पहले तहकीक करें, हदीस कहाँ है, किताब कौन सी है, रावी कौन है, मुहद्दिसीन ने उसके बारे में क्या कहा है, और जो तशरीह में बयान कर रहा हूँ, क्या वो वाकई हदीस के अल्फाज हैं या किसी आलम की तशरीह। ये चंद मिनट की तहकीक शायद हमें रसूलुल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब करने से बचा दे। आखिर में एक बात दिल से, रसूलुल्लाह से मोहब्बत सिर्फ आपका नाम सुनकर आंखें नम हो जाने का नाम नहीं, सिर्फ दरूद पढ़ने का नाम नहीं, सिर्फ नात सुनने का नाम नहीं। रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत का एक तकाजा आपके अल्फाज की हिफाजत भी है। जो आपने फरमाया सर आंखों पर, चाहे वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो, और जो आपने नहीं फरमाया वो कितना ही खूबसूरत क्यों न लगे, हम उसे आपके नाम से बयान नहीं करेंगे। हमें अपने दीन को खूबसूरत बनाने के लिए झूठी कहानियों की ज़रूरत नहीं। इस्लाम अपनी हकीकत में ही खूबसूरत है। हमें रसूलुल्लाह की अज़मत बढ़ाने के लिए मन घड़त वाक़यात की ज़रूरत नहीं। आपकी हकीकी शान ही हमारे तसव्वुर से कहीं बुलंद है। हमें सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम इजमीन की फजीलत साबित करने के लिए अफसानों की ज़रूरत नहीं। इनकी असल ज़िंदगियां ही ईमान, कुर्बानी और वफा से भरी हुई हैं। लिहाजा आज से एक छोटा सा उसूल बना लीजिए,
ہر مشہور بات حدیث نہیں، پہلے تحقیق، پھر یقین، اور اس کے بعد آگے بیان۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنے سے محفوظ فرمائے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہمارے معاشرے میں صحیح حدیث اور مشہور غلط فہمی کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔